میں پاکستانی عورتوں کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ یہ عورتیں ظلم و ستم سہتی، مردوں پر انحصار کرتی اور انہی کی مرضی سے کسی وادی پرخار میں زندگی گزارتی ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان میں خود عورت نے بھی مظلومیت، دکھوں کی چادر اور گھر کی چار دیواری کو اپنا مقام جان لیا ہے، جبکہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ اصل حقیقت اس سے کافی مختلف ہے۔ اصل مسئلہ صرف اس کردار کو جاننے کا ہے جو یہ عورتیں اپنے خاندانوں اور پھر اس معاشرے کی بنیاد میں ادا کرتی ہیں۔ خاص طور پر وہ دیہاتی عورت جس کا دن شاید اس کے خاندان کے باقی افراد سے بہت پہلے سے شروع ہوتا ہے، بچوں کی بہتر پرورش ہو، مویشی سنبھالنا یا زمین سے اناج حاصل کرنا، یہ عورت ہر مرحلے پر اپنا اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہے۔ اور اگر وقت مشکل ہو جائے تو یہی پاکستانی اور بظاہر کمزور عورت ہمت اور حوصلے کا نشان بن جاتی ہے اور معاشرے کے لیے روشنی کی کرن بنتی ہے۔ ایسی ہی چند حوصلہ مند عورتوں کی کہانی ہے ایک روشنی تم سے ہے۔ میں دیکھیا میں اپنے بچے نو 10 روپے تو دودھ تو روندیا دیکھیا، پھر اس تو بعد میں کسی تینوں کمی نہیں آندا گی اپنا میرا کچھ رہے نہ رہے۔ تینا پرا کہندا سی کہ تیرے نو اسی تیری اگاں شادی کر دینے ہاں، میں کہا بھی نہیں، میرا گال علامہ تانوں نہیں آوے گا، میں اپنی محنت کر کے کھاواں گی، ساڈا بھی نہیں ذہنی بوجھ بناں گی۔ کچے میرے گھر سی، کھان نو روٹی ایک ٹائم لبدی سی، ایک ٹائم نہیں سی لبدی، کہ قرضے دا بڑی ہوئی سی میں۔ سوریا نے نہ گھروں کڈ چھڑیا، میرے 2 بچے سن، بندہ وہی نہیں صحیح سی، کام نہیں سی کردا، انہاں مینوں بھی کڈ چھڑیا کہ اسی آپ کھائیے کہ تینوں کھوائیے کہ تیرے بچیاں نوں کھوائیے۔ پہلا ٹائم سی بڑا ہی غریبی دا سی، بہت غریبی ویکھی، ساڈی جڑی ماں سی نا اس نے سی سانو پرورش کیتا تے بگانیاں بویاں تے پرورش ہوئے سان تے او دے تو نا پھر اپنے سارے بوجھ پا لینے اپنے سر تے۔ اسی میاں بیوی حلال دی کر کے کما کے کھانے ہاں، بچیاں نو کھوانے ہاں، سانو کسی نے تن نہیں ہے، مینے نال کوئی غرض نہیں دی۔ ہوئے چھوٹے کاروبار سے بھی منسلک ہیں، جن میں پرچون کی دکان، سلائی کڑھائی، تندور لگانا، چوڑیاں بیچنا اور مختلف اشیاء کی پیکنگ کرنا شامل ہے۔ انہاں کہ ساڈے لو مر جا، ساڈے لو تو جیویں بھی تیرا ٹائم نکل گانا ساڈی بروہ تے نہیں تو۔ خاوند کے نشے کے عادی ہونے کے باعث سلیمہ بی بی کو ان کے سسرال نے 2 بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ اس تو بعد پھر میں اپنی ہمت نہ ہاری، میں کہ نہیں، میں کہ بھی نہیں جانا، لیکن اتنے ہی کام کرتا ہے۔ میں کہ اس تو نہیں جانا کہ باپ دیاں 6 بیٹیاں سن، ٹھیک ہے، وہ بھی غریب سی، میں کہ میں بھی چلی جاواں دی بہت ہی پریشانی ہوئی دی میرے باپ نو کہ میری بیٹی بھی آ گئی ہے، کی کراں، مر کے بھائی فرض ادا کیتا تیاں دا انہیں، میں کہ دلا اتنے ہی مرنا ہے تے اتنے ہی جیونا ہے، ٹھیک ہے۔ میں پھر اپنا پیسہ لے کام شروع کر لیا، اس تو بعد کام پھر بڑھتا گیا گا، بھائی کہ گلا چھوٹا جا لے لیا، وہ روز دے 20 روپیے پانے کرنے، کمیٹی بھی شروع کر لئی، نال اپنا قسط بھی دینی کرنی، کمیٹیاں دین دے باوجود پھر میں کوئی 90,000 دی جگہ لے لئی، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد پھر وہ نہ مینوں تھوڑے جے پیسے نہ واہ ملن لگ گیا، وہ میں ویچ لی 12,35,000 دی، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد میں اگوں آخیا ہوں کتنے جاواں، جگہ تے ویچ لئی، پریشان ہو گئی، قسط بھی دینی سی، پھر قسط بھی دیتی۔ اس تو بعد پھر مینوں یہ جگہ ملے پئی، یہ مینوں مل گئی 10,35,000 دی۔ میں بینک چ بھی پیسے 2 لاکھ روپیہ رکھے آئے کہ او دے تو کوئی 4-5,000 روپیے سان مہینے دا آ جاندا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گھر خرچہ نہ آوے تو اتوں لیا کے گھر دا خرچہ ٹورنی ہے، ٹھیک ہے۔ جڑا کاروبار دا خرچہ میں کدی بھی پیسہ نہیں کر چ استعمال کیتا، کیونکہ میں نہیں، میرا کام ودے گا، وداواں میں۔ آج ان کی ہمت اور محنت کے باعث وہ اپنے 5 مرلے کے گھر کی مالکن ہیں،
जबकि उनका खाविंद भी नशा छोड़ चुका है और उनकी इज्जत भी करता है। कपड़े भी सीने शुरू कर दिते, सेवियां बनानियां शुरू कर दित्तियां, कपड़ा बेचना शुरू कर दिता, जुत्तियां बनानियां शुरू कर दित्तियां। मैं बाहर भी दुकान रखी है, क्लास के भी रखी है एक दुकान, ठीक है। उत्थे छोटा मेरा बच्चा है, इधर मैं बाजी अपनी है कि भाई ओदे घर कपड़ा रखा, जिस तरह इत्थे रखा ना उत्थे कपड़ा रखा। इतवार मैं उत्थे जानी आ पैसे लैन वास्ते, ते कपड़ा पिछू दे आउनी आ अगले पैसे लैन। जदों मेरा काम जरा मठा पिया है ना कि घर कोई गाहक नहीं पियांदा, फिर मेले शेले नहीं लगते, मैं फिर उत्थे गंढ बन के ना कपड़े दी एडी बड़ी सिर ते धर लेनी आ, तो उत्थे जाके सारी खिलार के बह जानी आ, 2 घंटियां दे विच वेच के घर अगों फिर लैके टुर जानी आ, मिंट नहीं ला के पैसे लैके इकट्ठे बाल्टी भर के अंदर धर लई। मेरे बच्चे जवान हो पे, फिर उन्होंने लोगों ने कहने लगा मैनू घर वाड़ो, मैं घर रहना है, मैनू तुसी घर च रखो, जिस तरह भी हो सके मैं काम करांगा। मैं कहा मैं तेरा इलाज भी करावांगी, लेकिन ये कि काम करने ते तां हुण पहले तो जेले कराया कि इत्थे रहो कुछ 6 महीने साल तेनू पता लगे, उथों दियां दाल रोटियां मैं क्या खा, तेनू नसीहत आए कि किस तरह घर है, किस तरह बाहर है, किस तरह जेल होंदी है। लो जी अल्लाह दा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हें उथे नशा छड्डिया, माफी मंगी, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़िया, हाथ च मेरे नाल वादा कीता कि मैं अगों ये काम नहीं करांगा ते तू मैनू घर च रख। हुण मैं घर च रखिया, हुण अगला आवाज मारदा एडे एहतराम दे नाल, ठीक है। ते मैं भी फिर हस बही नहीं अगों कि शुक्र है अल्लाह तेरा भी टाइम साडे ते आया, अपने बच्चे जवान होए, अपनी हथी भी आए इन्हां नूं। मेरे ख्याल से हमारी जो हुकूमत है ना बजटिंग औरतों से सीख सकती है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि और अगर आपने इक्तिसादी तौर पे पाकिस्तान को सही करना है ना तो औरतों के हाथ में दे दो, हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो वो वहां से शुरू होता है और उसको पता है कि उसका 1 रुपए का वैल्यू क्या है। तो जब वो बिजनेस भी शुरू करती है तो वो उसी जहन से शुरू करती है कि मैंने अगर 100 रुपया लगाया तो मैंने उसमें से 100 रुपया कमाना है, वरना मुझे फायदे की बात नहीं लगेगी। मुख्तलिफ काम है, एक तो मैं कढ़ाई का काम करती हूँ और एक सिलाई का करती हूँ, तो कपड़े वगैरह भी रखे हुए रेडीमेड और वैसे भी लेडीज मर्दाना। कभी लेडीज कपड़े खरीदने का गाहक आ जाता है, कभी मर्दाना का आ जाता है। आम इंसान आजमाइशों से बचे रहने की दुआ करते हैं, मगर कभी कभी इंसान इन्हीं आजमाइशों के बार तले ही जिंदगी के बड़े फैसले करता है और किसी वक्त में पड़ा मुश्किल का बोझ सारी जिंदगी की आसाइशों का बाइस बनता है। किसी बहन भाई ने नहीं मदद की, ना ही किसी ने पूछा किसी चीज की जरूरत है तो हमें बताएं, हम अपनी मदद अपने तहत ही करते रहे। 15-20 दिन के बाद मैंने अपने मियाँ को कहा कि अब मैं ना कुछ नहीं कर सकती, पैसे खत्म हो चुके हैं। तो मेरे मियाँ पट्टी बांध के, ये पसलियाँ टूटी थी उनकी, तो वो काम पे जाने लगे, तो उसी तरह वो काम पे जाते रहे। मैंने अपने मियाँ से बात की, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हमारे हालात खराब हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, खुद तो तंगियों के दिन निकाल लिए हैं, तो आने वाले बच्चों को तो ना तंगियां दे, ना ही हम पढ़ा सकते थे। तो मैंने समझाया, मेरे मियाँ समझ गए, तो मैंने काम 6000 से पहले शुरू किया। कपड़े का काम मैंने किया, कपड़े में लेके आती रही और साथ साथ फौरन फरोख्त करके वैसे ही चली जाती थी बाजार। मेरे ख्याल में मैंने 1-1.5 लाख कमाया होगा। अल्लाह का शुक्र, अब मैंने अपना घर भी ठीक कर लिया, बच्चे भी अच्छी जगह पर पढ़ रहे हैं और काम भी मेरा सही चल। जो लोग ये सोचते हैं ना कि औरत काम करेगी तो वो बुरी हो जाएगी, बुरी नहीं होगी, उसका ज़हन बनेगा, ज़हन बढ़ेगा। मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, ना मुझे बाजार का नहीं पता था। मेरे मियाँ कपड़े ला के देते, सब्जी ला के देते, खाया पिया खामोशी से लेट गया, कोई मुझे नहीं था। अब मैं करती हूँ तो अब मेरा ज्यादा ज़हन बढ़ा, जो भी मुझे काम मिले प्रॉफिट का वही मैं कर लेती हूँ। सिर्फ प्राइमरी तक तालीम हासिल करने के बावजूद सकीना की हिम्मत और खुद एतमादी उन्हें हर मुश्किल मोड़ पर सही रास्ता इख्तियार करने का हौसला देती है। अब मैंने वो कंप्यूटराइज मशीन ली है, उसमें मैं अगर पढ़ी ना होती तो मुझे तरीका नहीं आना था। चलो इतना सा पढ़ी हूँ तो कुछ तो काम कर ही लेती हूँ, या बाजार जाती हूँ ये पढ़ लेती हूँ, ये कौन सी शॉप है, ये कौन सा मोहल्ला है या शहर है, या जैसे लाहौर जाती हूँ मुझे पता चल जाता है अब कौन सा स्टाफ आ गया, इन चीजों का मुझे पता चल जाता है। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ सकाफत, मजहब और कानून मर्दों को ज्यादा बाइख्तियार बनाता हो, औरतों के काम करने और उनके खुद इन्हिसार होने को अच्छा नहीं समझा जाता।
अलबत्ता ये अजीब हकीकत है कि अगर मर्द का साथ छूट जाए तो औरत के काम करने पर कई एतराजात उठाने वाली आवाजें खामोश हो जाती हैं। सारियां औरतां ही हैं। पहले क्लिनिकों का काम शुरू किया, पैकिंग का वो नहीं चलिया, फिर मैं रेडीमेड का काम जानती सी, फिर मैं काम शुरू किया। अल्लाह पाक ने 150 रुपए तो शुरू किया सी, फिर अल्लाह पाक ने काफी किया, फिर इन्हें 7-8 लाख रुपए घाटा भी पिया, फिर 7-8 लाख में ऐसे काम जो कवर भी किया। शाजिया के खावन बैरून मुल्क मुकीम है। वो न सिर्फ बच्चों की तरबियत कर रही हैं, बल्कि जिंदगी की गाड़ी के रास्ते को हमवार करने के लिए गारमेंट्स का छोटा सा कारोबार भी चला रही हैं। सिलाई कढ़ाई का काम खुद करनी आ, जेड़ा नीटिंग का काम है मैनू ऑर्डर का माल होंदा वो मैं बाहरों करवानी आ। कहते हैं इंसान के इरादे पुख्ता और नीयत साफ हो तो किस्मत भी साथ देती है। घर के हालात बेहतर होने के बावजूद शाजिया अपना काम जारी रखे हुए हैं ताकि बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल का हुसूल मुमकिन हो सके। एक बंदे को मैं माल खरीदिया, उस बंदे ने मेनू धोखा दिता। उस बंदे ने मेनू माल मैं 6000 का उस वक्त खरीदिया, 20 रुपए किलो खरीदिया सी। और मैं उनके आगे नीला काला ना दई, वो कसम चुके उन्हें नीला काला दे, तो मैं इतबार कर दी रही। उस बंदे ने इतबार किया, मैं लेना 500 रुपए किराया लग गया। मैं माल खोलिया, मेरी बड़ी टेंशन लगी, लेकिन अल्लाह पाक दी नजर ते रहमत होवे तो कोई मसला ही नहीं होता। मैं जिस टाइम उस माल को खोलिया तो मैं उनका सूट पीस बनाया, मैं बनाया मेरा 6000 का माल 32-33,000 गया। उस बंदे का धोखा ते अल्लाह दी मेहरबानी मेनू काम देगी, कुछ देर में काम किया कि ना सूट पीस बना। सवाल ये पैदा होता है कि जब औरत माँ की सूरत में बच्चों की पैदाइश और तालीम और तरबियत के लिए झोली भर कर अपना हिस्सा डालती है तो उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए जदोजहद क्यों नहीं कर सकती। ऐसा से सानू अगर असी काम करांगे तो साडे बच्चे खुशहाल पढ़नगे, अच्छे माहौल विच रहणगे, उन्हां से असी काम करने, उन्हां नूं अच्छा खाना कपड़े स्कूल तालीम सानी मिली। असी जिहड़ी चीज साडे को कमी असी अपनी औलाद नूं देंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देंगे। हुण मेरे को घर नहीं गा, मेरे ससुराल वालियां दा घर नहीं गा, लेकिन मैं अपनी अनुमा वास्ते सोच रही है कि मैं उन्होंने घर देवां। 2 मेरे बेटे ने पढ़ लैनी, मैं लिख नहीं सकती। मंडल का थोड़ा जहा हिसाब लगा के ना, अगर यहाँ कोई लफ्ज है जिस बे तो शुरू हो रहे हैं, बे ही लिख के ना ते उनका मैनू पता है कि मैं की लिखिया, सिर्फ उनकी राइटिंग में ही पढ़नी है। वो इस तरह होंगे कि पहले तो मैं करती होंगी सी कि अगर स्वेटर बनाए ना तो मैं अपना हिसाब उनके नीचे लिख लैंदी सी कि इन्नी चीज आई है, इन्नी मजदूरी गई है, इन्ना खर्चा पिया, इन्ने का माल तैयार हो गया। कहते हैं मर्द के जिस्म पर आंखों का जाल होता है और ये नहीं कि इन औरतों को घर से बाहर निकलकर काम करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, मगर जब नजर में सिर्फ मंजिल हो और बाकी तमाम अशिया धुंधली हो जाएं, तो पीछे से आने वाली आवाजें और खुद पर पड़ी नजरें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शायद इस तरह इन औरतों ने मर्दों के बनाए इस माशरे में गैरत की तारीफ भी बदल दी है। मुश्किलात तो बहुत है, बाहर कुत्ते तो बहुत होते हैं, फिर बंदे नूं अपने हाथ तो बचा के चलना ही चाहिए ना, क्योंकि मैं एक औरत जात है, मैं नहीं कह सकती कि मैं मर्द का मुकाबला कर लांगी, वो मेरा हाथ पड़े तो मैं उन्हें छड़ देंगी। नहीं, मैं कोशिश करांगी कि मेरा हाथ पड़े ही ना। मैं इसलिए अपनी पोजीशन ही इस तरह की बना के जानी कि मेरे वाले कोई तक्की ना, क्योंकि मैं अपनी माल की कदर चाहती हूँ। औरत बहुत कुछ कर सकती है अगर तालीम नहीं, ये औरत हुनर सीखे। बड़े पास काम कीते ने, मुंजियां वट्टियां ने, कणकां वट्टियां ने, गलियां च बह के लोबिया छोले ला के बेचे। जो लोग ये सोचते हैं ना कि औरत काम करेगी तो वो बुरी हो जाएगी, बुरी नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कितनी फीसद औरतें ज़रई या गैर ज़रई जमीन की मालिक हैं? रहो। जिस तरह एक मर्द की कामयाबी में औरत की शमूलियत नागुज़ीर है, इसी तरह एक औरत की कामयाबी में मर्द का भी बहुत अहम किरदार होता है। तो मैं काम करती रही हूँ, झगड़े वगैरह होते रहे, लेकिन मेरे मियाँ ने कभी नहीं झगड़ा किया। रिश्तेदार कहते थे कि ये काम गलत है, ये अच्छा नहीं, लोग कहेंगे कि ये आपकी भाभी है या बहन है या जो भी है, ये तो काम करती है, बाहर जाती है, मर्दों से मिलती है, तो ये तो नहीं अच्छा है, अच्छी बात है। तो मेरे मियाँ ने कोई असर नहीं लिया उनकी बातों का, ना ही मैंने लिया। कभी बाहर में जानी है तो फिर मर्द जाते हो, मर्द औरत ते उनका ध्यान रहता है कि मेरी बीवी है बाहर जा रही है, की करेगी।
लेकिन ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਖਾਮਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੱਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈਫਲ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ, ਫੈਰ ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵੇ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਫਸਾਦ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ कि मैं ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾ लेनी है, जरूरत पवे तो मैं आप ही चला लेनी। समाज की बिन्नत और एक शक्ल इख्तियार करने के हवाले से बहुत से माहिरीन की ये राय है कि एक वाहिद की ज्यादा अहमियत नहीं होती, इसकी सोच, जिंदगी के उसूल और शख्सियत उस समाज की मरहून मिन्नत होती है जिसमें वो रहता है। मगर तारीख ने साबित किया है कि यही एक इंसान समाजी तब्दीली का बायस भी बनता है। कभी कभी रिवायात और आम ख्यालात को बदलने की भी शदीद जरूरत होती है। इन औरतों को बतौर मुआशरा जीने, सोचने और इस सोच के तहत अमल करने का हक और जगह दीजिए ताकि इन किरणों से बनने वाली रोशनी पूरे समाज को रोशन कर सके। दुनिया सिर्फ गल्लां कर सकती है, रज्जे को खो सकती है, भुखे तो दे नहीं सकती। ते ऐसा से सानू अगर असी काम करांगे तो साडे बच्चे खुशहाल पढ़नगे, अच्छे माहौल विच रहणगे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत अगे फते आ बराबर मुस्तकबिल भी हिम्मत अगे करता ही हो। औरत का कोई मसला नहीं है, औरत अपने आप मजबूत कर लेगी तो सब कुछ है, ना मजबूत करे तो कुछ भी नहीं हो, मिट्टी है। जिदे हाथ कायम ने ना वो बंदा कदी भुखा नहीं मरता, भावे जो मर्जी काम करो ते बादशाही, काम नहीं ते कुछ नहीं। जेड़ा फिर रब भार चकांदा है ते ओनू फिर औला समझ के चुकना पैंदा, ते जे आखिए ले असीं हुण मता जाण फिर भुखे ही मरना है। पठान मार दी नहीं 35 किलो दा ते तोड़ दी नहीं जाम लोहे दे। मैं देखिया, मैं अपने बच्चे नूं 10 रुपए तो दूध तो रोंदिया देखिया, फिर उस तो बाद मैं किसी तेनू कमी नहीं आंदागी, अपने मेरा कुछ रवे रहा। कच्चे मेरे घर से खान रोटी एक टाइम लभदी सी, एक टाइम से लभदी, कि कर्जे दा बज्जी हुई सी मैं। औरत का बाहर निकलना वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं अगर औरत खुद मजबूत हो गई। बड़े पैसे काम कीते ने, मुंजियां वड्डियां ने, कणकां वड्डियां ने, ते बड़े अल्लाह दा ना शुक्र है, अल्लाह को यही है कि अल्लाह सोने हिम्मत देवे ते तंदुरुस्ती देवे। जिस टाइम अपना हुनर देखनी है ना, फिर मैं कहनी कि शुक्र अल्लाह कि मेरे को हुनर है, मैं भुखी नहीं मार सकती। कोई ना फिर हिम्मत कर गया तो कोई मुश्किल नहीं।